شائن سٹار ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام. میں پاسٹر عرفان شریف بلیسنگ آف گاڈ چرچ سے میرا تعلق ہے، اور میں نہایت شکر گزار ہوں پاسٹر عاشر منشا صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کو ان کے ہاں آ کر بیان کر سکوں، اور کرسمس کے حوالہ سے آج ہم یسوع مسیح کی پیدائش پر کچھ سیکھ سکیں. تو آئیں ہم خدا کے کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے. لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی انجیل، اس کا دوسرا باب ہے، اور اس کی 8ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. کلام مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ہو، آمین. عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق جب فرشتے چرواہوں کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو بڑی خوشی کی بشارت دی اور ان سے کہا کہ ڈرو مت. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا جب ان سے باغ میں اپنے اس وقت کے مطابق، جب وہ ٹھنڈے وقتوں میں ان سے ملنے کو آیا کرتا تھا، تو آواز دی آدم کو کہ آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا. آج ہم جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کے گناہ کرنے کے باعث انسان کی زندگی میں جو ڈر پیدا ہوا، بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں جنم لیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے آ کر ان چرواہوں کو، ان لوگوں کو کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ تمہاری زندگی سے وہ ڈر ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آج وہ منجی پیدا ہوا ہے جس نے آج ہماری زندگیوں سے ڈر کو ختم کرنا ہے اور ختم کر دیا ہے. منجی جس کا مطلب ہے مکتی داتا، وہ مکتی بتانے نہیں آیا، مکتی کے بارے میں صلاح نہیں دینے آیا، بلکہ مکتی دینے آیا ہے، جس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. اور یسوع کا نام جس کا مطلب ہے نجات دہندہ، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب فرشتہ مریم کے پاس آیا تو اس وقت مریم بھی ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی، اور فرشتہ نے اس سے بھی کہا کہ مریم خوف نہ کھا، کیونکہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. گناہ انسان کی زندگی میں ڈر پیدا کرتا ہے، اور آج یہ خوشی کی بشارت ہمارے لیے یہ ہے کہ آج وہ منجی، وہ مکتی داتا ہماری زندگیوں سے ڈر ختم کرنے آیا ہے. اور آج انسان کی زندگی میں اگر کہیں گناہ ہے تو گناہ ڈر پیدا کرتا ہے، ڈر خوف پیدا کرتا ہے. اور بائبل مقدس میں یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ خوف عذاب پیدا کرتا ہے، اور جو انسان عذاب میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. لیکن یہ فرشتے ان لوگوں کو آ کر پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو بڑی خوشی کی بشارت ہم تجھے دیتے ہیں، اور آج اس بیت لحم میں، اس یروشلم میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ منجی ہر ایک کے ڈر کو،
خوف को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में डर पैदा होता है गुनाह के सबब से। और वो गुनाह आदम और हवा की सबब से जब दुनिया में आया, नस्ल इंसानी में फैल गया, तो यीशु मसीह को इसीलिए इस दुनिया में खुदा बाप ने भेजा, ताकि वो डर, वो खौफ इंसान की जिंदगी से खत्म कर दे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आदम के गुनाह करने के बायस खुदा की और इंसान की आपस से सुलह खत्म हो गई, लेकिन यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और इस दुनिया से गुनाह खत्म करना इंसान और खुदा का मिलाप था। इसीलिए क्योंकि इंसान डरता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब मूसा ने झाड़ी को जलते हुए देखा तो उसने भी वहां खुदा की आवाज को सुना। आदम ने बागे अदन में खुदा की आवाज को सुना और वो डर गया। और बाइबल मुकद्दस में बताया गया है कि हमें इस डर से निकालने के लिए ये बड़ी खुशी की बशारत है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बेशक क्रिसमस की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, लेकिन ये जरूर हर एक इंसान मान सकता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ और उसका पैदा होने का मकसद यही था कि इंसान की जिंदगी से गुनाह का डर खत्म हो जाए, ताकि इंसान फिर से गुनाह ना करे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक और डर है, और वो डर मुकद्दसों के लिए कहा गया है। ज़बूर में लिखा है कि ऐ मुकद्दसो, खुदावन से डरो, खुदा का खौफ मानो, खुदा का डर मानो। आज मुकद्दस अगर खुदा का खौफ मानते हैं, डर रखते हैं, तो वो डर जो खुदा का मुकद्दसों की जिंदगी में, मुबारक इंसान की जिंदगी में, यीशु मसीह को कबूल करने वाले लोगों की जिंदगी में है, तो वो डर सुकून, इत्मीनान पैदा करता है। लेकिन वो इंसान जो हमेशा गुनाह में पड़ा रहता है, उसके लिए खुशखबरी है कि ऐ इंसान, तू अपने गुनाह से बाज आ, क्योंकि तेरे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और उस मुनज्जी ने इस डर को खत्म करने के लिए अपने आप को इस दुनिया में पेश किया है। और इसी डर को यीशु मसीह ने खत्म करने के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। इसलिए इंसान यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं कि जब चरवाहों ने उस खुशखबरी को सुना, तो 15वीं आयत में लिखा है, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। आज अगर आप इस डर और खौफ से निकलते हैं, आप अपने गुनाह की हालत से निकलते हैं, तो आपके लिए भी लाजम है कि इस बड़ी खुशखबरी को, बड़ी बिशारत को आप भी उन लोगों तक पहुंचाएं जो बेबहरा हैं, जो इस खुशखबरी को सुन नहीं सके अभी तक, जिनको अभी तक इस खुशखबरी की समझ नहीं है। आज मेरे लिए और आपके लिए इस बड़ी खुशखबरी और बड़ी बिशारत की देने की जरूरत है कि हम उन लोगों तक इस बड़ी खुशखबरी को पहुंचाएं कि देखें, आज हमारे पास एक मुनज्जी है। मुनज्जी मुक्ति दाता है। वो मुक्ति, गुनाहों से मुक्ति दिलाता है। वो सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि वो गुनाहों से मुक्ति दिलाता है, रिहाई दिलाता है। जिसने कहा कि अगर कोई गुनाह करता है तो वो गुनाह का गुलाम है। याद रखें, हमें यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया कि हमें उस गुनाह से आजाद करे, और आज हमें आजाद होकर यीशु मसीह को कबूल करना है, ताकि हम उस डर से निकल जाएं जो अजाब पैदा करता है, बल्कि उस डर और खौफ को माने जो हमारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान और हमेशा की जिंदगी पैदा करता है। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो हमेशा की जिंदगी बख्शे हमें, और हमेशा की जिंदगी इसमें है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं कि वो इस दुनिया में आया और उसने हमारा नजात दहिंदा बनकर हमें गुनाह से मुक्ति दिलाई। सो अजीजो, हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और आज ये किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं कि यीशु मसीह आया और वो
जान दी या पैदा हुआ और वो चले गया, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यूहन्ना के इंजील तीसरे बाब की 16वीं आयत में हमें मरकूम मिलता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु मसीह पर जो कोई किसी भी कौम, किसी भी कबीले या किसी भी उम्मत या किसी भी जुबान से ताल्लुक रखने वाला है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्योंकि यीशु इसीलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और ये बड़ी खुशी की बिशारत उस वक्त उन चरवाहों तक पहुंची, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन चरवाहों ने जब जाकर उस मुनज्जी को देखा, उस बच्चा को देखा कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पाया, तो उन्होंने बड़ी बिशारत दी। उन्होंने जाकर इस बात की मशहूरी की, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाकर इस बात का सबूत दिया कि वो उस मुनज्जी यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, उन्होंने उससे सजदा किया है। और आज हम भी जब यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, इस बात पर ईमान लाना है कि वो इस दुनिया में आया, और ये वो यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कोई इत्तेफाक नहीं कि यीशु आया और पैदा हुआ, बल्कि इससे पहले यशायाह नबी उसकी पेशनगोई करता है, कई नबियों ने उसकी पेशनगोई की। पैदाइश की किताब से ही खुदा ने आदम और हवा से कहा था, हवा से कहा कि मैं औरत की नस्ल में से एक बच्चा पैदा होगा और वो उसकी एड़ी पर काटेगा और उस इब्लीस के सर को कुचलेगा। और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पालूस रसूल इस बात की वजाहत करता है कि जब वक्त पूरा हुआ तो यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा हुआ। तो अजीजों, हम सब जानते हैं जो बाइबल मुकद्दस से वाकिफ हैं, और अगर हम बाइबल मुकद्दस से वाकिफ हैं, हमने इस खुशखबरी को सुना है, इस बड़ी बिशारत को सुना है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह की पैदाइश का दिन बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाएं। हमारे लिए यही खुशी की बात है कि सब ईमानदार मिलकर इस दिन को मनाने के लिए दिसंबर से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा मुनज्जी जो पैदा हुआ वो हमारे गुनाहों को उठा ले गया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि मुनज्जी यीशु इस दुनिया में आया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम लूका के इंजील पहले बाब की 26वीं आयत देखते हैं, तो वहां हमें मिलता है कि छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। याद रखे अजीजों, ये बड़ी खुशखबरी एक बहुत बड़ा हम पर फजल है खुदा का, क्योंकि ये फजल उसी वक्त होता है जब इंसान गुनाह में गिरता है। और याद रखें, इंसान नस्ल इंसानी जब गुनाह में गिरी तो उस वक्त इंसान गुनाह में गिरने के बायस खुदा से दूर हो गया और उससे वो फजल भी दूर हो गया। और ये बड़ा फजल मरियम के लिए खुशखबरी का सबब हुआ। और फरिश्ता ने कहा कि तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से
وہ मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। याद रखे अजीजों, रूहुल कुद्दस जब भी नाजल होता है उस वक्त वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब इंसान जब तक नहीं बना, कुछ भी नहीं बना था, उस वक्त खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था और खुदा का रूह ही रोशनी पैदा करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजल होगा, ये मरियम से फरिश्ता ने कहा, जब रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजल होगा तो खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और जब रूहुल कुद्दस नाजल होता है तो यकीनन जिंदगियां तब्दील होती हैं, जिंदगियों में रोशनी आ जाती है, कुदरत आ जाती है और बड़ी खुशी की बात आती है। आज याद रखें, हमारे लिए ये क्रिसमस बड़ा दिन एक आम दिन नहीं, बल्कि ये बड़ी खुशी की बशारत है, बड़ी खुशी का दिन है। इसे जितना धूमधाम से, जितनी खुशी के साथ आप मना सकते हैं मनाएं। और याद रखें, सबसे बड़ी बात, आज बहुत सारे लोग, रिश्तेदार, अजीज कारब आपस में नाराज होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। और ये दिन हमें याद दिलाता है, ये दिन हमें सिखाता है कि वो उनसे राजी है जो सुलह रखते हैं, जो सुलह के फर्जंद हैं, जो सुलह में रहते हैं। और यकीनन बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के बारे में ये साया पहले से पेशनगोई कर देता है कि वो सुलह और सलामती का शहजादा होगा। और याद रखे, सुलह और सलामती का शहजादा यीशु मसीह अगर मेरी और आपकी जिंदगी में है तो याद रखें, हम कभी भी एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे, एक दूसरे के बारे में कीना नहीं रखेंगे, बल्कि हम अपने उन नाराज दोस्तों के साथ, अपने उन नाराज रिश्तेदारों के साथ हम राजी होंगे, उनके साथ सुलह करेंगे। और ये सुलह की खुशखबरी उसी वक्त हमारी जिंदगियों में काम करेगी जब हम यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे, जब हम उसकी पैदाइश के दिन को अपनी जिंदगी में लेंगे और जानेंगे कि जिस तरह फरिश्ता ने उन चरवाहों से आकर कहा कि डरो मत, और वो उस खौफ से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि आओ हम चलें उस बैतलहम में जहां वो मुनज्जी पैदा हुआ है, जहां वो लड़का पैदा हुआ है, और वो वहां तक गए। ये एक तजर्बा है, आप भी अपनी जिंदगी में इस तजर्बा को लें। ये कोई सलाह नहीं है, बल्कि मैं आपको यकीन और ईमान से कहता हूं कि जो कोई यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है, जो कोई यीशु मसीह को सजदा करता है, वो सजदा उसकी जिंदगी में कायम रहेगा। याद रखें, आपको यीशु मसीह बहाल करेगा, और जब तक आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ना लेंगे, कुछ भी नहीं। इंसान बहुत कुछ करता है और ये सब कुछ खुदा की तरफ से इंसान को मिला है, और इंसान फिर भी कहता है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। इंसान को खुदा ने जिंदगी दी, इंसान को खुदा ने दौलत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, सब कुछ दिया, लेकिन इंसान फिर भी नाशुक्री करता है और कहता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। तो किसी शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा, उसने कहा, ना कर नहीं नहीं ये वक्त नहीं है नहीं का, ना कर नहीं नहीं ये वक्त नहीं है नहीं का, तेरी नहीं नहीं ने तुझे छोड़ा नहीं कहीं का। जब हम नाशुक्री करते हैं, जब हम उससे सजदा नहीं करते, तो ये नाशुक्री को जाहिर करता है। जब हम उसके हजूर नहीं जाते, याद रखें, उन लोगों के लिए जो सिर्फ इस दिन को शराब नोशी करके मनाते हैं और ऐशो इशरत करके, बड़ी बड़ी पार्टियां करके मनाते हैं, वो यीशु मसीह को सजदा नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी ऐशो इशरत को सजदा कर रहे हैं। वो दुनिया के हम शक्ल बनकर इस दिन को मनाना चाहते हैं, लेकिन यीशु उनसे राजी नहीं। यीशु उनसे राजी है जो उसे सजदा करने जाते हैं। चरवाहे उसको सजदा करने गए, मजूसी उसे सजदा करने गए, तो यीशु मसीह उनसे राजी है, खुदा उनसे राजी है। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फरिश्तों की एक बहुत बड़ी गिरोह वहां हम्द करती हुई आई, खुदा की हम्द करती हुई आई। और आज हमारे लिए भी वाजिब है कि हम भी
उस खुदा की, उस मुनज्जी यीशु मसीह की तमजीद और हमद करते हुए उसके हजूर सजदा करने जाएं। अगर हम इबादत गाहों में जाते हैं तो याद रखें, अकेले ना जाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब मूसा को खुदा ने कहा कि बनी इस्राएल कौम को फरौन की गुलामी से निकाल कर लिया, तो उस वक्त फरौन के पास जब मूसा गया तो मूसा को फरौन ने कहा कि तेरा खुदा इस कौम का क्या करेगा। तो मूसा ने उससे कहा कि मेरा खुदा चाहता है कि ये कौम मेरी इबादत करे। फरौन ने कहा ठीक है, मर्द मर्द जाकर खुदा की इबादत करके आ जाएं, औरतें और बच्चे यहीं रहें। लेकिन खुदा ने मूसा से कहा कि ऐ मूसा, फरौन से कह कि तू तो औरतों और बच्चों की बात करता है, हम अपने जानवर का एक खुर भी यहां नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए अजीजों, खुदा जानता है कि अगर मर्द ही मर्द आकर उसकी इबादत करेंगे तो उन मर्दों का ध्यान और ख्याल पीछे अपनी औरतों, अपनी बीवियों, अपने बच्चों में रहेगा। खुदा नहीं चाहता कि जो उसकी इबादत के लिए आए उनके ख्याल बट जाएं, बिखर जाएं। और खुदा चाहता है पूरी फैमिली, पूरा घराना, पूरा खानदान उससे सजदा करने के लिए उसके हजूर आए, क्योंकि ये वो मुनज्जी खुदावंद है जो इस दुनिया में बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी की बिशारत लेकर आया। और यीशु मसीह का पैदा होना ही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि वो हमारी जिंदगियों से खौफ को, डर को खत्म करने आया, क्योंकि गुनाह बड़ा खौफ पैदा करता है, बड़ा अजाब पैदा करता है। और यीशु मसीह नहीं चाहता कि हमारी जिंदगियों में अजाब पैदा हो, और वो चाहता है कि हम सब आजाद हों। बाइबल मुकद्दस में रोमियो के खत में लिखा है कि बस जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। लेकिन याद रखें, जो गुनाह की जिंदगी गुजारते हैं वो गुनाह की हालत में रहते हैं, और खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह की हालत में रहें, क्योंकि जो गुनाह की हालत में रहता है वो मुजरिम है, और वो यीशु मसीह में नहीं। यीशु मसीह में अपने खानदान को लेकर आए, अपने बच्चों को लेकर आए, अपने बहन भाइयों को लेकर आए, ताकि आप सब खुदा के हजूर मुकम्मल इबादत कर सकें और उस मुनज्जी यीशु को सजदा कर सकें। आए अजीजों, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और आप दुआ करेंगे। ऐ खुदा कदूस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरी अजीम मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार, तेरे रहम, तेरे तरस के लिए। खुदावन, बेशक आज का दिन बहुत सारे लोग देखना चाहते थे, लेकिन खुदावन तूने उनकी याद इस दुनिया से मिटा डाली। लेकिन आज खुदावन तूने हमें यह मौका और वक्त बख्शा, इसलिए कि खुदावन हम इस बड़ी खुशखबरी को, बड़ी बिशारत को दुनिया तक लेकर जाएं। ये बड़ी खुशी की बात है कि मुनज्जी यीशु मसीह पैदा हुआ और उसके वसीला से हमने हमेशा की जिंदगी पाई। ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस पैगाम के लिए, आज के इस कलाम के लिए, बिशारत के लिए, खुशखबरी के लिए जो खुदावंद हम तक पहुंची है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद तूने इस मुल्क में, इस इलाका शहर कराची में खुदा हमें आज़ादी बख्शी, ताकि हम खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी के साथ तेरी बिशारत का काम कर सकें। खुदावंद, मैं एक बार फिर पास्टर आशर मंशा साहब के लिए और खुदा उनकी सारी टीम के लिए, शाइन स्टार टीवी के लिए, ऐ खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूं, ताकि खुदावंद ये और बढ़े और बहुत तक तेरी बिशारत का काम अंजाम दे सकें। यीशु के नाम से आमीन।